Hello everyone, a very good evening to you all. To all my viewers, to all my dear students and wonderful friends. As you know that every day we come in front of you to discuss certain legal issues, to discuss certain legal concepts, and we certain times we discuss the relevant judgments or orders coming straight from the honorable courts. So my dear students, today we shall be discussing few questions, few case laws from Constitution of India which are very important case laws, and they have been asked time and again in different legal competitive examinations, right? So let us start with the first question for today, that is the Constitution of India, in which case the Supreme Court has determined that persons who are not smoking cannot be compelled to be a victim of air pollution. देखिएगा, बात को समझिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ये बोला है कि जो स्मोक नहीं कर रहे हैं, जो सिगरेट नहीं पी रहे हैं, उनको कंपेल नहीं किया जा सकता है कि वो एक तरह से पैसिव स्मोकर बन जाए। क्योंकि जब कोई भी सिगरेट पीता है बाहर में, तो वहां पे जो भी खड़ा है पैसिवली, दो ऑल्दो ही इज नॉट स्मोकिंग, लेकिन जो सिगरेट सामने वाला स्मोक कर रहा है, उससे जो धुआं निकल रहा है वो उसके लंग्स में भी जा रहा है, वो इनहेल वो भी कर ले रहा है, हो रहा है, नेचुरल है, तो पैसिव स्मोकिंग हो जा रहा है। तो विक्टिम तो जो नहीं पी रहा है सिगरेट, वो भी बन रहा है। तो सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में ये बोला कि आप पैसिव स्मोकर बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जो those who are not smoking, they cannot be compelled to be a victim of air pollution. ये किस केस में बोला गया? ऑप्शंस आर MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सरदारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सतपाल दांग वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एंड मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. My dear students, the correct option is Murli S. Deora. You say, many of you might have been knowing this, that Murli S. Deora versus Union of India is correct answer, in which the Supreme Court had observed that those who are not smoking cannot be compelled to be a victim of air pollution. Alright, so guys, moving on to the next question for today, that is Constitution of India, in which of the following cases the Supreme Court has held that the laws in the 9th schedule are also subject to judicial review. The laws in the 9th schedule are also subject to judicial review. ये किस केस में बोला गया? सबसे पहले आप 9th शेड्यूल को समझिए कि 9th शेड्यूल में क्या कहा गया है। 9th शेड्यूल में इट कंटेन्स, आप जानते हैं कि 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 12वां शेड्यूल में 9th शेड्यूल जो है, दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सेंट्रल लॉज एंड स्टेट लॉज विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट्स, जिसको कि कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आई रिपीट कि 9th शेड्यूल में क्या है? 9th शेड्यूल में सेंट्रल लॉज, एक लिस्ट है जिसमें कि सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज को रखा गया है, एंड दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट्स. हाउएवर, it was added by the Constitution First Amendment, that is in the year 1951. All right. अब इसके चार ऑप्शंस है. 9th शेड्यूल तो आप समझ गए. सवाल यही था कि 9th शेड्यूल जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता और ऑल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ये किस केस में बोला गया? ऑप्शंस आर टीके रंगराजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, IR, second option is IR Coelho versus state of Tamil Nadu, third one is state of Gujarat versus Union of India, and the fourth one is PUCL, कविता कौशिकवाला जो राजस्थान में, PUCL versus Union of India. Correct answer is IR Coelho versus state of Tamil Nadu. That is the correct option, that is second option, IR Coelho versus state of Tamil Nadu. इस केस में ये बोला गया that 9th schedule is also subject to judicial review. The third question which we shall be discussing today is a very important question, and that has been asked. I don't know that how many times it has been asked. It has been
often been asked. That is, right to life under Article 21 does not include right to die. It has been held in which case? P. Ratinam versus Union of India, State versus Sanjay Kumar Bhatia. Third option is Chenna Jagdishwar versus State of Andhra Pradesh, and the fourth one is Gyan Kaur versus State of Punjab. My dear students, Gyan Kaur versus State of Punjab, that is the option fourth, is the correct option. Fourth option, Gyan Kaur, Srimati Gyan Kaur versus State of Punjab is a correct option. जो पहला ऑप्शन है पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें बोला गया था राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई, लेकिन इसमें बोला गया ज्ञान कौर में वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई. देखिए, अगर आप इंक्लूड राइट टू डाई करिएगा तो सेक्शन 309 आईपीसी को भी हिट करेगा. सेक्शन 309 आईपीसी कह रहा है कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर आईपीसी. सुसाइड कर रहे हैं और सुसाइड नहीं कर पाए सक्सेसफुली, पकड़ा गए तो हमको जेल जाना पड़ेगा. 309 में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड पनिशेबल बोल रहे हैं आईपीसी में. तो अगर अभी जो हमने क्वेश्चन बोला कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, ये आर्टिकल 21 में है, और अगर इसमें चेंज हो जाएगा कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई, तो 309 को खत्म करना पड़ेगा, 309 को अबॉलिश, स्टक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा. एज ऑफ नाउ इंडिया में राइट, बहुत सारे कंट्री ने इसको इंक्लूड कर लिया है राइट टू लाइफ में, बट हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किया है. अभी भी इंडिया में जो श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का पोजीशन ही फॉलो हो रहा है, का जजमेंट ही फॉलो हो रहा है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी क्लियरली बोला है दैट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई. और यही आर्टिकल 21 में एक ऐसा राइट है जिसका कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव राइट नहीं है. जैसे मैं, आप, कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव राइट का मतलब यह है कि अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव राइट यह है, इफ आई हैव द राइट टू स्पीक देन आई हैव नो राइट टू स्पीक एज वेल. इफ आई हैव द राइट टू सिट देन आई हैव द राइट नॉट टू सिट ऑल्सो. इफ आई हैव द राइट टू स्लीप देन आई हैव द राइट नॉट टू स्लीप ऑल्सो. बात समझ रहे हो? लेकिन बस यही नहीं है कि इफ आई हैव द राइट टू लिव देन आई हैव नो राइट टू लिव, दैट इज आई हैव राइट टू डाई, ये नहीं है. और बाकी सारे पॉजिटिव राइट का कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव राइट है, लेकिन इसका कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव राइट नहीं है. दैट इज राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई एज हेल्ड इन ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया by the Honorable Supreme Court. Guys, I have cleared everything. All the questions have been discussed in the details. Guys, stay tuned on our YouTube channel because it's a very progressive channel. We come with very important questions. We come with very important judgments coming straight from the Honorable Courts, and it will conceptually make you very sound. So stay tuned on India's biggest law learning platform, that is on the YouTube channel of Chanakya CLAT Classes and Chanakya Judicial Academy. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Sri Ram.